دنیا کی ساری برائیاں ایک کمرے میں بند کر دی گئی ہیں. اس کا جو تالا ہے نا, اس تالا اس کی تالے اس کا نام شراب ہے, اور جھوٹ شراب سے بھی زیادہ اتنا دور. اس لیے میں جب یہاں پڑھنے آؤں تو میرا فرض ہے کہ میں کچھ ان کی تعلیمات کو پڑھوں. ایسے نہیں جو مجھے خیال میں آئے ادھر سے جملہ ادھر ٹھوک دیا, ادھر سے ادھر ٹھوک دیا. ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہمارے ذہنی خیالات کی ضرورت نہیں ہے, تخیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے ان کی تعلیمات کو سیکھیں, جانیں, تاکہ کمال ہو جائے. اس لیے ہمارا فرض ہے. اس لیے میں گزارش کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بات آپ کو عجیب لگے تو میں آپ کو جو ہے میں یہ ایک آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرنا کیا ملے گا. تو امام حسین علیہ السلام نے کیا اکثر ایسے مجموعوں میں کتاب کرتا ہوں جہاں پہ مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ ہم بھی سن رہے ہیں. اس لیے میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نعرہ لگائیں, صلوات پڑھیں, حتیٰ کہ صلوات تو وہ عبادت ہے جس کے ایسی عبادت ہے کہ جب مومن جبریل کے بارے میں اس میں اللہ کے پوچھا, اللہ کوئی ایسا عمل ہے جس کا ثواب شمار نہیں کیا جا سکے. اللہ نے کہا جو مومن اکٹھا ہو کے صلوات پڑھتے ہیں نا, اس کا اتنا ثواب ہے کہ لکھا نہیں جا سکتا. خوشنودی امام زمانہ باوار بلند صلوات. خاموشی کچھ کھڑکو کندو کر حیدر دے نعرے جو صبح شام ٹڑکو کندو کر ان کا ودی کبھی کیڑی عبادت کی لان تن تے لعنت جو کڑکو کندو کر نعرہ حیدری. پھر ایک مولا کا فرمان پیش کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ ہماری ان محفلوں کی مجلسوں کی اصل رونق ہے ہی ان کی سیرت, ان کی تعلیمات, اور ہمارا اپنا کمال ہے ہی تب جب ہم اپنے آپ کو ان میں گم کریں. واہ 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 واہ. بات سے کہیں اور بات جا رہی ہے. ایک جملہ کہہ دوں, ظاہری طور پہ 14 معصوم ہیں, لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں وہ ان میں 14 میں شامل نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ان میں گم کر دیا, ختم کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. سب جانتے ہیں حضرت زینب, مولا عباس, حضرت علی اکبر, حضرت قاسم, یہ سارے 14 میں شامل تو نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ان کی سیرت میں گم کر دیا, اپنا پورا وجود ان کے حوالے کر دیا کہ یہ اب ان کا حصہ. کمال یہ مولا کا ایک فرمان ہے, مولا کائنات کا, کہ چیزیں اپنی ازدا یعنی مخالفت سے پہچانی جاتی ہیں. اگر کربلا کی بات کرتے ہیں, امام حسین کے کارنامے کو پیش کرنے کی کوشش کریں, ہمیں سمجھنا ہوگا حالات کیا ہیں. اب ایک روایت پیش کرتا ہوں, تاریخ طبری میں لکھا ہے, سنت کی یہ کتاب ہے, کہ یزید نے کیا کیا تھا جب مسائل نہیں پڑے, البیت کا لوٹا ہوا قافلہ وہاں پہنچا, اس نے ایک بکواس کی. اس نے بولا کہ دیکھ اگر کاش میرے بدر احد میں جو بڑے مارے گئے تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بدر احد میں جو قتل ہوئے تھے, یعنی کہ بدر میں 70 آدمی قتل ہوئے تھے, کفار 34 صرف مولا علی نے قتل کیا. تو اس نے کہا جو ہمارے بڑے علی کے ہاتھ مرے تھے نا, اگر وہ زندہ ہوتے, دیکھ کہتے یزید تم نے کتنا اچھا بدلہ لیا. آگے ایک جملہ کہتا ہے, مسئلہ نہیں پڑا, کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کوئی قرآن نازل نہیں ہوا, کوئی اللہ کی طرف سے کتاب نہیں آئی, بنی ہاشم نے صرف اقتدار کے لیے نعوذ باللہ ڈھنگ رچائے. یعنی اب کیا ہوا, اللہ کا انکار, لعنت بر یزید پلید کے اللہ کی محنت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا حالات دیکھنا چاہیے. یزید نے اللہ کا انکار کیا, یزید نے رسول کا انکار کیا, یزید نے قرآن کا انکار کیا. اب یعنی اب امت کے سامنے کیا ہے, یزید خلیفۃ المسلمین. کل بھی میں نے روایت پیش کی تھی آپ کے سامنے, کچھ لوگوں کے یہاں یزید جو ہے وہ امام ہے, خلیفہ ہے, اور اب یہی دین ہوگا, نہ قرآن, نہ اللہ, نہ رسول. اب امام حسین اٹھے, امام حسین نے اللہ کی توحید کو بھی بچایا, رسالت کو بھی بچایا, قرآن کو بھی بچایا. امامت کا جھگڑا تھا ہی نہیں, توحید کا جھگڑا تھا. اب حسین نے اپنا کچھ نہیں بچا کے توحید بچائی, کچھ نہ بچا کے اللہ کے دین کو بچایا, کیونکہ حسین نے کیا اللہ کا ذکر, اللہ کا وعدہ تھا, اذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. اللہ نے کہا اے حسین تو نے اپنا سب کچھ لٹا کے میری توحید بچائی, اے حسین اب تیری مجالس کی, تیری عزاداری کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے اللہ پہ. دھماکے ہوں گے, مجالس بڑھیں گی, گولیاں چلیں گی, عزاداری بڑھے گی,
जितनी मुखालफत होती जाएगी तेरा जिक्र उतना बढ़ता है। जिक्र शब्बीर बम के धमाकों से दबाने वाले कितने नादान हैं शियों को डराने वाले। आज भी गैब से आती है सदाए मुसलसल महदी, जिक्र शब्बीर कर लो मुझको बुलाने वाले। मिलकर दोनों वाले रोटे सलवात। इन मजालिस की रौनक, इनके बढ़ने की अब असल वजह अल्लाह की ये जिम्मेदार। अल्लाह की तालीमात को सही तरीके से पहुंचाने के लिए अपना कुछ हुसैन ने दे दिया। उधर अल्लाह ने कहा हुसैन अब जितना करें। आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ साल पहले कराची में आशूर के जुलूस में धमाका हुआ। चहलम का जुलूस डबल था, आशूर से डबल था। बहुत सारे लोग जैसे बैठे रहे नहीं जाते, लेकिन जब चहलम आया बोला अब जब मजलिस में वैसे आना लाजमी नहीं है, लेकिन जब मजालिस पे जुलूस पे पाबंदी लगना हो ना फिर लाजमी हो जाता है। जिक्र हुसैन को रोकने की कोशिश की जाए फिर लाजमी हो जाता है कि सबके सब। इसलिए अब अल्लाह ताला की जिम्मेदारी इन मजालिस की हिफाजत। और जो जान अल्लाह की राह में जाए तो ज़ाहिर होती नहीं है। अगर मजलिस में जुलूस में धमाका हो गया कोई गया ना, आप सोचिए इससे बड़ी फजीलत क्या है कि उसका शुमार करबला के शोहदा के साथ। मैं फिर एक रिवायत पेश करूं। देखिए एक शख्स था, दो शख्स थे, बस एक मौला अली अलैहिस्सलाम का हामी था, एक था हाकिम शाम का। तो दोनों बहस कर रहे थे। बहस करते करते झगड़ा हो गया। मुखालिफ ने मौला अली के मानने वाले को तलवार लगाई सर, ये बेहोश हो गया। बेहोश होकर ख्वाब में देखा एक नूरानी हस्ती है। वो कौन थे? मौला अली अलैहिस्सलाम थे। मौला ने फरमाया, उसने कहा मेरे सर पे हाथ रखा और फिर कहा देखो जब भी तुमसे कोई पूछे ये सर पे निशान किसका है तो उसके कहना जंग सिफ़ीन में अली के साथ लड़ रहा था वहां निशान लगा। तो जो भी मेरी राह में जिद्दोजहद करे, चाहे अपने ज़ुबान से, चाहे अपनी मिल्कियत से, चाहे अपने वजूद से, वो ऐसा ही है जो मेरे साथ लड़ता हुआ। इसलिए जो यहाँ पे मारा जाए, शहीद हो जाए, वो शोहदा करबला के साथ। इसके साथ ऊपर दर्जा क्या है? मजालिस अज़ा मेरी थोड़ी बातें नाराज जो अजीब लगे तो बेशक नाराज हो जाए। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, हम सब का मकसद ये हो अल्लाह राजी हो और 14 सरदार राजी। खुद मौला इस करबला के सरदार फरमाते हैं दुआ अरफा, मौला ने नौज़िल हज दुआ अरफा है ना वो पढ़ी, उसमें एक जुमले हैं। मौला फरमाते हैं अल्लाह जिसको तुम नहीं मिला उसको क्या मिला, जिसको तू मिल गया उसको क्या नहीं मिला। मौला फरमाते हैं अल्लाह जो भी तेरे बदले में किसी भी चीज पे राजी हो गया उसने घाटे का सौदा किया, और जिसने तुझे पा लिया सब खो दिया फिर भी उसने कोई घाटा नहीं किया। ऐसे ही हमें मौला की पूरी सीरत में तौहीद मिलती है। इनकी मर्जी, इनकी खुशनुदी असल कमाल। अगर हम वो नहीं कर रहे तो फिर हम कमाल पे नहीं जा रहे। इसलिए मजलिस तफरीह नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, मजा लेना है, मजा नहीं है। मजलिस हुसैनी हुर बनने की दरसगाह है, हुसैनी बनने की दरसगाह है, हुर बनाने की दरसगाह है। हुर का क्या था पता है मसला? हुर भटका हुआ था, गुमराह था, हुर के सामने करबला पेश हुई, हुसैनी हो गया। आज बहुत सारे भटके हुए हुर गलियों में मौजूद हैं, सरोना में मौजूद हैं, रस्तों में मौजूद हैं। उनके सामने सही तरीके से करबला पेश करने की रोकन पेश करेगा मौला की इस पाकीज़ा बारगाह में। मैंने पहले भी कहा बेशक नाराज हो जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि फिर यहाँ से हकीकी माना में हुर बन के जाना। एक फरमान सैयदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माल हराम गैस किया वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारे पेट में क्योंकि ये हराम का माल है ना, इसलिए तुम पे मेरी नसीहत असर नहीं करती। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? इमाम को कत्ल कर दोगे। ज़हन में रखिए, जब भी हराम का एक लुकमा सामने आए मौला की इस फिक्र को याद रखें, हमारे मानने वालों भूख में मर जाओ, हराम का लुकमा की। इसी तरीके से करबला सब क्यों सब कुछ सिखाने के लिए
اگر ہم وہاں سے چلے گئے نا ویسے ہی اب یہاں نیاز نہیں کھائیں. آیت اللہ دستگیت کا بقیاس کر رہا تھا نا. آیت اللہ نے لکھا کھانا کھاتے ہیں صدقے 14 پہ. شروع میں چھٹے امام کی روایت پیش کر چکا ہوں. امام زمانہ نہیں ہو تو نہ کھانا ہو نہ پینا ہو نہ کچھ ہو. سورج کی روشنی امام کی وجہ سے ہے, چاند کا چمکنا امام کی وجہ سے, ہمارا بچے کھانا پینا سب امام کی وجہ سے ہے. پھر بھی ایمان کی اگر ہم نہیں کریں تو پھر ہم کما دیں. مولا کا فرمان رض کر رہا تھا میں نکلا ہوں لانا دی امت کی اصلاح کی. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ میری جو سیرت کا طریقہ ہے نا, وہ طریقہ کیا ہے؟ نانا رسول اللہ اور بابا علی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا. یعنی مولا فرماتے ہیں میں جس مطلب کی بات کر رہا ہوں اس میں پیغمبر کا وارث علی ہے. اب ان کی سیرت میں چلے جاتے ہیں. بہت بار میری بہت دوستوں سے بحث ہوئی مخالفین سے. وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ان خلفاء نے ظلم کیے, ان نے ظلم کیا, پھر بھی ہم جس کتاب آپ کی میں پڑھتے ہیں مولا علی کا ان سے بہترین سلوک کیوں ہے؟ بہت اہم نقطہ پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں آپ کے ائمہ کی سیرت میں ان دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں ہے؟ میں اس کی مثال عرض کروں. یہاں ایک خوشبو پرفیوم پڑا ہوا ہے, ایک بڑا ایک شیشہ بھرا ہوا ہے, آپ نے اس کو توڑ دیا, ظلم کیا شیشے کے ساتھ, لیکن ٹوٹنے کے بعد جب پھیلے گی تو کیا پھیلے گی؟ خوشبو پھیلے گی. یہی خوشبو ائمہ معصومین کے اندر برائی تھی نہیں. کتنے دشمن آ جائیں, کتنے برے آ جائیں, ائمہ کے اندر تھی ہی بھلائی. یہ نا میں چوتھے امام کی سیرت میں مروان, جس کا نام مروان ہے, وہ کتنا ہی مروان تھا. وہ آتا ہے امام کی بارگاہ میں, 1 مہینہ رہتا ہے, مولا اس کو کھلاتا ہے. ماشاءاللہ. میرے گھر پہ مہمان بن کے آیا ہے. حضرت علی اکبر کا قاتل آتا ہے. پتہ ہے کس حالات میں آتا ہے؟ مدینہ مکہ میں کیا تھا؟ عبداللہ بن زبیر کا اس طرف کا یزید, جنگ ہو گئی. عبداللہ بن زبیر کہتا تھا میری حکومت ہے, یزید کہتا تھا میری خلافت ہے. اب جنگ ہوئی, جنگ چلتے چلتے یزید اپنی موت مر گیا. اب سردار مر گیا جب ان کا, تو یہ بھاگے. اب بھاگتے بھاگتے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملی سوائے امام سجاد کے گھر. حسین بن نمیر علی اکبر کا قاتل بے شمار اب اپنا منہ چھپا کے آتا ہے, آگے مولا کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. مسافر ہوں, کچھ عرصہ پناہ چاہیے. دروازہ کھول کے مولا فرماتا ہے آجا. پورا مہینہ مہمان نوازی کرتا ہے مولا سے. جب ایک پورے مہینے کے بعد وہ جاتا ہے نا, بہت اہم نکتہ ہے, جاتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. سجاد نے فرمایا تجھے میں نہ پہچانوں, جس سے میں نے دیکھا تھا نہ پہچان گیا. تو اس نے حیران ہو کے پوچھا پھر بھی ایسا اچھا سلوک؟ ہم کربلائی ہیں نا, مولا سجاد کی سیرت ہمارے نمونے عمل ہے. سجاد مولا فرماتے ہیں کربلا میں تھے ہم تمہارے مہمان, وہ تھا تمہارا سلوک, یہاں ہو تم ہمارے مہمان. سجاد کی سیرت اپنے سینوں میں لائیں. جو بھی مہمان بن کے آئے نا, اس کو یہ نہ دیکھیں دشمن ہے, یہ نہ دیکھیں مخالف ہے, بسم اللہ بیٹھ جاؤ مہمان. یہ ائمہ کے اندر کمال ہے, نیکی ہے, برائی ہے ہی نہیں. اب ایک بہت خطرناک دشمن کا جملہ آج کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. سپاہی صاحب دشمن ہے شیعہ جنگ, وہ اس کا ایک چیف وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت شیعہ کیا کہتے ہیں, اب کچھ غلط کرتے ہیں, یہ ہماری تعلیمات میں نہیں. معصومین نے منع کیا ہے کہ اس کو برا بھلا نہیں کہو, دلیل سے پیش کرو, برا بھلا نہیں کہو. وہ کہتا ہے شیعہ ہمارے خلفاء کو بولتے ہیں, ہم شیعوں کے اماموں کو جب تک نہیں بولیں گے برابری نہیں ہوگی. آگے کہتا ہے میں نے بہت ڈھونڈا, جوہر احمد فاروقی, میں نے بہت ڈھونڈا, نہ علی میں خرابی پائی, نہ حسن میں خرابی پائی, نہ حسین میں خرابی پائی, نہ سجاد میں خرابی پائی. ان کے کسی امام میں کوئی خرابی ملی ہی نہیں کہ مجھ کو. اب میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا, اپنے اوپر پڑھ رہا ہوں مجلس میں اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کر کے سوال پوچھوں اپنے آپ سے, مولا کی سیرت میں بڑے سے بڑے دشمن کو کوئی خرابی نہیں ملتی, کیا میں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہوں میں علی کا شیعہ ہوں؟ ہے بالکل شیعہ اہل سنت کے ہاں ہے. بہت ساری کتب میں ہے, خود شیعوں کے خلاف لکھی ہوئی بڑی کتاب تھی تحفہ اثنا عشریہ, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی. اس نے لکھا اس کتاب میں کہ رسول اکرم کی حدیث ہے, یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں, اے علی تو اور تیرے شیعہ جنتی ہیں. سب لکھنے کے بعد وہ بھی مانتا ہے یہ حدیث ہے. اب سوال یہ ہے, کیا میں نے کہہ دیا میں شیعہ ہوں, مولا مان لیں گے؟ میں نے دعویٰ کر دیا, مولا مان لیں گے ہاں میرا شیعہ ہے؟ جواب پھر میں سن کسی دو فرمان. ایک مولا علی بن ابی طالب, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
तशिए जनाजा सुना होगा, जनाजे के साथ जाते हैं ना, पाँव के निशानों के ऊपर पाँव रखना, इसको शिया कहते हैं। शिया है ही वो जो अली के पाँव के निशानों के ऊपर पाँव रख के चले। 8वें इमाम की बारगाह में एक आया, उसने कहा मौला मैं आपका शिया हूं। उन्होंने फरमाया मत झूठ बोलो। फिर मौला ने नाम बताए, फिर निशानियां बताई। मौला ने फरमाया बेशक अली का शिया एक हसन है, एक हुसैन है, सलमान है, अबू जर है, ये है अली के शिया। फिर मौला ने निशानी बताई, अली का शिया सिर्फ वो है जो हर फर्ज अदा करे, हर हराम को तर्क कर दे। क्या हुसैन मौला के इस पाकीज़ा खून की ये तकाजा नहीं कि हम हर फर्ज अदा करें, हर हराम को तर्क कर दें, हर मजलूम के साथ खड़े हो जाएं और मौला की उस सीरत को अपनाएं। हम छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मौला की सीरत लेकिन नहजुल बलागा में है। मौला कायनात फरमाते हैं मेरे साथ ये सलूक हुआ जैसे आंख में कांटा हो, हलक में हड्डी फंसी हुई हो और मैं देख रहा था मेरी मीरास रुक रही थी। मौला रद्द अमल क्या था? मौला फरमाते हैं मैंने फैसला ये किया जब भी दीन के लिए अली की मिल्कियत, अली के ऊपर जुल्म होता रहे, अली को कबूल है, दीन बाकी नहीं। आ जाना कमाल नहीं। बहुत अच्छा जुमला मुझे एक जगह मिला था, करबला जाना कमाल नहीं है, करबला से हुर बन के आना कमाल है। मजलिस में आना कमाल नहीं, यहाँ से हकीकी माना में हुर बन के जाना। एक फरमान सैयदा फातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक खातून आई दीदी के पास, पूछा सैयदा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सैयदा ने कहा पूछे। मैंने कहा दीदी मेरा शोहर उसने एक सवाल दे के मुझे भेजा है। सवाल ये है कि मैं अपने आप को आपका शिया कहलवाता हूँ। हम सब दावा करते हैं ना शिया है, दावा करते हैं। मेरे शोहर ने कहा है कि बीवी मैं खुद को आपका शिया कहलवाता हूँ, क्या कबूल करती हैं? अब सैयदा बता सकती थी कबूल है कि कबूल नहीं। नहीं, बीवी ने कानून बताया, फार्मूला बताया पूरी दुनिया के लिए। ये फार्मूला है, देखें इस पे उतरे तो शिया है वरना नहीं। अब सैयदा ने फरमाती है जो हुक्म हमने दिए अगर उन पे अमल करें, जो चीज से हमने रोका अगर उससे रुक जाए तो हमारा शिया है वरना। इसी रिवायत को कुछ रिवायत में 6वें इमाम से, कुछ में 11वें इमाम से मिलती है। पूछा गया शिया कौन है? मौला ने फरमाया अगर एक मोहल्ले में एक बस्ती में 1000 घर है। अब समझे मैं अपने ऊपर पढ़ रहा हूँ, अपने आप को पूछ रहा हूँ, मैं शिया हूँ नहीं हूँ। आप गुजरेंगे मेरे सबके समय, अपने आप को कह रहा हूँ। मौला फरमाते हैं अगर ये अब्दुल्ला गोट के सारी आबादी को देख के हर इलाके वाला, हर करीबी ये कहे ये जो घर है सबसे ज्यादा शरीफ है, जान लेना वो जाफर सादिक का शिया सबसे ज्यादा शरीफ नहीं है तो फिर शिया नहीं। बारगाह हुसैनी से आइए वो किरदार मौला से लें, मौला की बारगाह में अर्ज करें मौला 3 रातें गुजर गई, मौला अभी तक तब्दीली नहीं आई मुझ में। मौला मैं 3 रातों से आपके और आपके घराने के ऊपर आंसू भी बहा रहा हूँ, मैं मातम भी कर रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी तेरे नाम पे मिलता खाता भी रहा हूँ मौला, लेकिन अभी तक किरदार तेरे वाला बन नहीं सका है मौला। अभी भी मेरे से अक्सर फजर कज़ा हो जाती है, अक्सर रोजे छूट जाते हैं, अक्सर हराम खा जाता हूँ, अक्सर किसी जालिम की हिमायत में उठ जाता हूँ मौला। आपकी बारगाह में आप ही से मांगने आया हूँ, अता करें। आपसे मांगने आया हूँ, मुझे पता है आप दे सकते हैं। आपकी बारगाह में आपसे मांगने आया हूँ। वो भूख ईमान वाली बहुत अच्छी है, हराम वाली कमाई से। हुसैन वाली को सीरत दुनिया पूरी को जिसने इनकलाब दिया, आइए उस सीरत क्या हुआ। ये था कि मैंने अर्ज किया शुरू में, यजीद ने अल्लाह के पूरे दीन को बदल दिया। इमाम हुसैन अगर करबला ना होती पता है क्या होता? किताब में एक वो था साहबी रसूल था, हंजला नाम था। वो सुबह उठा, जैसे उसको गुस्ल की बरस आवाज, अच्छा रसूल अकरम का मैसेज मिला आज जंग पे चलते हैं। उसने कहा पैगंबर दिनों के हाल जानते हैं? उन्होंने बुलाया उनको, जानते बस चले आए जल्दी में। जंग में शहीद हो गए। शहीद होने के बाद जब उनका गुस्ल होने लगा
तो कुछ परिंदों के परों की फड़फड़ाहट की आवाज आई। पूछा किसी ने, या रसूल अल्लाह क्या है? आपने फरमाया, हंज़ला को मलाइका गुस्ल कराने आए हैं, क्योंकि जब इसको मैंने बुलाया इसने सब छोड़ के मेरी सदा पे लबैक। अब उस हंज़ला का लक़ब है गसीलुल मलाइका, वो जिसे मलाइकों ने गुस्ल करवाया। उस हंज़ला का बेटा है अब्दुल्लाह इब्न हंज़ला, मदीने में रहता है। करबला हो गई, जिसको मैसेज आया कि यजीद के दरबार से कि आओ कुछ अर्सा हमारी मेहमानी खा के जाओ, साहबी के बेटे हो। ये आया दरबार में, ना होती करबला क्या होता। ये आया, कुछ दिन दरबार में रह के वापस मदीना आया। इसने ऐलान किया कि मैं यजीद के खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ, अगर कोई साथ दे तो ठीक है, वरना अकेला लड़ूंगा। पूछा गया क्यों? बोला जितने दिन दरबार यजीद में रहा, हर लम्हा यही सोचता रहता था, अभी अजाब आया, अभी अजाब आया। बोला क्या देखा? इसने कहा मैंने देखा कि यजीद ने हलाल खुदा को हराम, हराम खुदा को हलाल कर दिया, नमाज का मजाक उड़ाता है। कहता है कुरान में वैल लिल मुसल्लीन आया है, यानी उन नमाजियों के लिए वैल है जो अपने नमाजों की हिफाजत नहीं करते। वैल लिल मुसल्लीन आया है, वो मलऊन कहता था वैल लिल मुशर्रबीन नहीं आया। नमाजियों के लिए मुसीबत आया है, शराबियों के लिए मुसीबत नहीं आया। नमाज से नऊज़ बिल्लाह शराब अफसर है। अल्लाह अकबर। यजीद वो था जिसने मुहर्रम रिश्तों के साथ माँ, बहन, खाला, फूफी के साथ निकाह जायज कर दिया था। अल्लाह अकबर। अस्तगफिर। वो मलऊन था जिसने एक बंदर को बिठाया हुआ था, खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, ये कहता था ये रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। न होती करबला ये होता, यही होता करबला। और हंज़ला अपने हंज़ला कहता है मैं लड़ूंगा। 10 आदमी हुए, 10 लड़े, 10 के 10 शहीद हो गए। फिर तवाबीन की तहरीक चली, फिर मुख्तार की तहरीक चली, जिसने किसी भी काफिर को नहीं छोड़ा। न होती करबला ये दीन होता, माँ के साथ निकाह जायज होता। इसलिए हम कहते हैं हुसैन मुसलमानों का रहबर नहीं है, हुसैन इंसानियत का रहबर है, हुसैन गैरत का रहबर है, हुसैन शराफत का रहबर है। दुनिया के किसी मसलक में बहन से शादी जायज नहीं, यजीद कर रहा। अल्लाह अकबर। बेशुमार। इंशाल्लाह आपके सामने वाक़या हिरा पेश करूंगा। तो हुसैन मौला की कुर्बानी जिसमें उसने कुछ नहीं बचाया, दीन बचा। इस पाकीज़ा जगह से, दर्सगाह से, जो दुनिया की सबसे बड़ी दर्सगाह है। आखिरी फरमान पेश करके मसाइल पढ़ता हूँ। 8वें इमाम पर आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला फरमाते हैं हम 14 के 14 निजात की किश्तियाँ हैं, लेकिन हुसैन की किश्ती सबसे वसीम है, सबसे बड़ी दर्स। इससे आइए लेके आज़ाद 28 रजब की तारीख थी। बोला हुसैन मस्जिद नबी में थे। मैसेज आया, एक आदमी आया, उन्होंने कहा कि आपको वलीद जो गवर्नर है मक्का का, उसने मदीना पहुंचने को बुलाया। बेशुमार। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी था, उसने पूछा इमाम हुसैन से क्या मसला है। इमाम ने फरमाया कि लगता है कि मुआविया का इंतकाल हो गया, मर गया है, उसका बेटा यजीद खिलाफत पे बैठा है, उसने हमसे बैयत तलब की है, इसलिए इसने हमें बुलाया। कल इमाम ने उसको कहा हम आ रहे हैं थोड़ी देर। फिर मौला आए उसके पास आए, और वहाँ पे उसने कहा कि मुआविया वफात कर गए हैं, मर गए हैं, और अब यजीद उसका खलीफा है, आप उसकी बैयत करें। मौला ने फरमाया बोले ये बैयत आधी रात को होने वाली कोई चीज़ नहीं है, खुले दिन में बात करना, फिर देखते हैं कि खिलाफत का लायक कौन है। मौला ने फरमाया हम अहल बैत वही की वो जगह है जहाँ पे वही नाजिल होती है। हम अहल बैत अल्लाह की तरफ से ज़मीन पे अमीन है उसके, हम अल्लाह के रसूल के अहल बैत हैं जो जानशीनान रसूल हैं, खुले में देखना। फिर मौला ने यह भी फरमाया मेरे जैसा यजीद की बैयत कभी नहीं कर सकता। वलीद ने को चुप कर गया, वहाँ पे मरवान मौजूद था, जिसने कहा वलीद अगर ये तुमसे निकल गया तो तुम्हें हाथ नहीं आएगा, इसको अभी कत्ल कर दो। मौला ने फरमाया वलीद तू मुझे कत्ल करेगा जिस पे अल्लाह के रसूल ने लानत की थी, तू करेगा मुझ पे कत्ल? मरवान बहरहाल मौला वहाँ से आ गए और तैयारी की। मदीना का शहर है, रसूल अकरम का शहर है, हुसैन का काफिला मौला हुसैन आए नाना की कब्र पे। नाना की कब्र पे बैठे बैठे तो थोड़ी सी भीड़ आ गई, उन्हें ये देखा कि नाना फरमा रहे हैं हुसैन जाओ अपने अहल बैत को भी साथ ले जाओ और शहादत के लिए तैयार हो जाए। माँ की कब्र के लिए आए हुसैन, सब की कब्रों से रुखसत होके जा रहे हैं। आप सब ने अल्लाह ताला मैंने कल भी अर्ज़ की थी
मजलिस के सदके आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब। इलाही आमीन। अब जब जाएंगे ना ज़ियारत पे, जो गए हैं अल्लाह उनको फिर नसीब करे। जब लौटते हैं ना अलविदा ज़ियारत करके, लौटने वाला फिर देखता है, फिर भागता है ज़ली की तरफ, फिर निकलता है, फिर भागता है। ये याद रसूल की नाना की कब्र से इजाजत लेके जा रहा है, माँ की कब्र से इजाजत लेके जा रहा है। अदाता जिस साल सन 60 हिजरी थी, मौला निकले 61 हिजरी में करबला हुई है। जिस साल ये मौला निकले हैं ना, उस साल रसूल अकरम की कुछ अज़वाज हज करने आई हैं। रसूल अकरम ये तो ठीक है कहा कि एहतराम करो, लेकिन इतनी ज्यादा फजीलत हैसियत नहीं बताई थी जितनी अहल बैत की बताई थी। लेकिन हमें रिवायात में मिलता है जहाँ अज़वाज रसूल पहुँचते हैं, पूरे का पूरा मोहल्ला मर्दों से खाली हो जाता। रसूल की बीवियां हैं, खाली कर दो, मोहल्ला अकेला रहा। लेकिन अहल बैत कैसे आए हैं आपको 28 रजब जिस काफिले का सालार हुसैन था, शाम गरीबा में उसकी सालार भी हुसैन। और हम अली शरीयत एक जुमला लिखने का कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ग्रुप थे या 3 ग्रुप थे। 3 एक है हुसैनी, वो जो हुसैन के साथ शहीद हो गए। दूसरा है ज़ैनबी, क्योंकि ज़ैनब शहीद हो गई, अब ज़ैनबी है जो ज़ैनब के नक्शे कदम पे चल रहा है, जो ना हुसैनी है ना ज़ैनबी, वो बस यज़ीदी है। ज़ुहैर इब्न कैन एक शख्स है जो आया है मक्का में हज करने, हज करके वापस जा रहा है कूफा। मौला हुसैन भी उसी रास्ते में, क्योंकि मक्का से कूफा एक ही रास्ता है। ज़ुहैर को पता चला इमाम हुसैन जिसको मिलते हैं उसको कहते हैं मेरी मदद करो। इमाम मुझे मिलेंगे, मुझे भी कहेंगे मदद करो। मैं मिलूं ही नहीं, ना मुलाकात हो ना मदद करो। तो रास्ता बदलते बदलते दूर खेमे लगा। एक जगह रास्ता बहुत खराब था, करीब खेमे लगाने पड़े। जब करीब खेमे लगे मौला ने देखा, ज़ाहिरी तौर पे पहले तो इल्म गैब से पता था मौला को, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे पूछा किसका खेमा है, बताया गया ज़ुहैर इब्न कैन। मौला ने फरमाया जाओ ज़ुहैर को मेरी तरफ से मैसेज दो, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हुसैन कहता है मेरी मदद। पता है ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हवाला क्यों नहीं? अरबों का एक रिवाज था, अजमत बताते तो बाप की तरफ से तारुफ कराते, गुर्बत बताते तो माँ की तरफ से। मौला अपनी गुर्बत बता रहे हैं। ज़ुहैर बैठा है खेमे के आगे, खाना लुकमा तोड़ के हाथ में लिया तो मौला का सहाबी पहुंचा, बोला फर्जंद ज़हरा हुसैन तुम्हें बोला हुई। इस मकश में मुब्तला है, क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, मैं तो भाग रहा था। खेमे के अंदर से बीवी की आवाज़, ज़ुहैर तुम्हें शर्म नहीं आती? हुसैन बुलाता है, तू सोचता है खुदा की कसम अगर मुझे बुलाता तुझसे पूछती भी नहीं, चली जाती। ज़ुहैर आए मौला के पास, बताया गया इस खेमे में इमाम बैठे हैं। ज़ुहैर अंदर गए, सब साहबी हैरान है। खुद अहले सुन्नत के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंसानियत मौत के दरवाजे पे किताब का नाम, उसमें लिखा है। ज़ुहैर अंदर गया, वापस आया, बस अंदर गया, कोई आवाज नहीं आई। सबने हैरत से देखा, वापस आके बोला मैं हुसैनी हूँ। बीवी बच्चों को भेज दिया वापस कूफा, बोला मेरा खेमा मौला के साथ लगा, मौला के साथ। सब हैरान है, ज़ुहैर हुसैनी कैसे बना? फिर आज 10 मुहर्रम तक रास रहा। जब 10 मुहर्रम को ज़ुहैर लड़ने के लिए निकले हुसैनी काफिले की तरफ से, उधर से किसी ने पूछा ज़ुहैर तू हुसैनी काफिले में था तो नहीं, तो हुसैनी बना कैसे? ज़ुहैर ने कहा मुझे एक वाक़या ने हुसैनी बनाया। क्या वाक़या? ज़ुहैर कहते हैं मुझे ये मैसेज मिला था मौला हुसैन की जानिब से, अभी ये मैंने अर्ज़ किया, फर्जंद ज़हरा हुसैन को मैं बुला रहा था। मौला में गया, जिस खेमे में बताया गया था ना यहाँ पे हुसैन बैठा है, मैं उस खेमे में जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मुझे नजर आया हुसैन नहीं बैठे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोला मैं हुसैन का साथी बन के नहीं आया, रसूलुल्लाह का साथी बन के आया हूँ। ज़ुहैर की शाद आखिरी जुमला पढ़ूंगा मसाइल का, लेकिन एक नुक्ता, हुसैन ने फरमाया था, मैंने किया ना, मौला ने फरमाया नाना रसूलुल्लाह की सीरत पे अमल करूंगा, ऐसे नहीं कि बताऊंगा हुसैन मुस्तफा का बेटा, नहीं, मौला ने फरमाया था चलेगा हुसैन नजर मोहम्मद आएगा, बोलेगा हुसैन नजर मोहम्मद आएगा, उठना बैठना हुसैन का होगा, दुनिया को नजर मुस्तफा आएगा। हम सबके लिए पैगाम, चलो ऐसे दुनिया को हुसैन दिखाएगा। हुसैन की सीरत पे अमल करो, हुसैन के जैसे तो नहीं बन सकते, हुसैन के शिया बन के चलो जैसे दुनिया को हुसैन याद हो गई। शाम गरीबा ज़ुहैर की बीवी ने अपने नौकर को, गुलाम को भेजा, आज करबला वाले शहीद हो गए हैं, पता नहीं ज़ुहैर को कफन मिला कि नहीं मिला, कफन ले जाओ ज़ुहैर को दे दो।
وہ آیا، کچھ دیر کے بعد وہ کفن واپس لے کے کوفہ پہنچا۔ زہیر کی بیوی نے پوچھا کفن لے کے گئے واپس کیوں لے آئے؟ بولا بیوی کفن ایک تھا، بے کفن لاشیں بہت تھے، حسین بھی بے کفن ہے، عباس بھی بے کفن ہے، علی اکبر بھی بے کفن ہے، بیوی کس کس کو کفن دیتا؟ آزاداروں مولا سجاد جب واپس آئے نا، اکثر مدینہ کے بازاروں میں آتے تھے، ایک بار ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، بول رہا تھا مدینہ والوں میں مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ مولا ہے اس کو پوچھا اے فقیر تو یہاں مسافر ہے، تجھے لگتا ہے اگر تو یہاں مر جائے تمہیں غسل ملے گا، تمہیں کفن ملے گا؟ اس نے کہا ہاں مجھے یقین ہے، میں مسلمان ہوں، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، مجھے غسل بھی دیں گے کفن بھی دیں گے۔ مولا نے منہ کیا کربلا کی طرف، اے میرا غریب بابا، بابا آج مدینہ میں ایک فقیر کو یقین ہے کہ اگر مر جائے گا تو غسل بھی ملے گا کفن بھی ملے گا۔ فرزند رسول کربلا میں شہید ہو گیا، نہ تو غسل دینے والا تھا نہ کوئی کفن دینے۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔